Hello students, welcome to today's session. Today we are going to start with our first chapter, that is sets. So what is meant by set? Set is a well-defined collection of objects. इसका मतलब क्या है? Well-defined collection of objects means what? For example, let A is a set of all even numbers less than 10. So what I'm going to write? 2, 4, 6, 8. Right? Now I'm not going to write 10 because less than 10 I asked. So here I can see A is a set of all the even numbers which are all even numbers which are less than 10, but they should be natural numbers. So all even natural numbers less than 10 are 2, 4, 6, 8. I wrote it into parenthesis, right? And by separating with comma. So such representation of any objects, whether it is a number, any alphabet, anything, that is any object, if they are well defined, that is some connection is there, some rule is in between them, then such collection of object is called as set. Here I can say A is a set because it is a collection of numbers which are even. So one relation is there, that is natural number. Second, they are even number. Third, they are less than 10. So here three relations are possessing each other, right? With each other. But if I write B is a set of all doctors in Pune having or will rectify it set of so there will be countable number, right? For example, we don't know the name. A is a third MD doctor and so on. In such way, if you start writing all the names of MD doctors in Pune, such set will be called as such collection of names will be called as set because all these objects, the names which we are writing in our set, in our collection, they are having degree MD of this medical field, right? So in short, what we can say, set is a collection of well-defined objects. That means that definition should not change person to person. If I take this list and tell anyone here, this I have written this list B as set of all MD doctors. If I show it to any person from whether it is he is from Pune or he is from anywhere, he is able to understand this, right? This is the set of this is a set which contains collection of all the MD doctors in Pune. If I show this set to anyone, he can understand this. These numbers are even numbers, natural numbers less than 10, right? So definition of this collection will not change from person to person. That's why such collection which is not changing, whose definition is not changing from person to person. This is one definition. Second, not the definition, we are telling it in a crude language. Now, second type, what we are saying कि उनमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन possess करना चाहिए. Such collection of objects is called set. If I take the third example, let's see the set of all the vowels in English alphabets. What I can write? A, E, I, O, U, right? So here you can see this collection is a set because it is well defined. There is some relation in between them. And also include language. What we said, if I show this set to person A, he will also understand this is the collection of English alphabetical vowels of English alphabet, right? If I show this to B person, he is also able to understand, right? So the definition of this collection is not changing from person to person. That's why such collection is called as set. ठीक है, अगर दिक्कत हो रही होगी तो सिर्फ इतना याद रखो, सेट क्या है आपका, एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स जिसमें कोई ना कोई रिलेशन होता है और वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स solve question number 1 from exercise
1. Now this exercise 1.1. The first question is which of the following are sets? We have to find which one is set and which one is not a set. Justify your answer. We have to also justify our answer. Starting from the first one. Let's solution. First one. Here I can see the collection of all the months of a year beginning with the letter J. Here you can write let A is a set of all months of year which are starting from letter J. First is January, second June, July, right? So if I write such collection, here I can see it is a well defined because they belongs to the months from a year and also they are starting with J, right? So such collection of objects is called a set. That's why A is a set. ये बदल नहीं रहा कहीं जाके ना, because लिख लो because it is well defined है, और जो लिखना है लिख दो, वैसे तो 1 मार्क के लिए इतना लिख दे तो ठीक है. Now the second, the collection of 10 most talented writers in of India. अगर अब ये बोला है बताओ मुझको. अब अगर मुझको बोला जाए ना, if I ask, if you are asking to Anand, he will say, उसने बोला कि नहीं A अच्छा राइटर था, B अच्छा राइटर था, C अच्छा राइटर था. फिर if we ask Tanay, he will write नहीं B इज अच्छा राइटर था, D इज अच्छा राइटर था, E अच्छा राइटर था. तो ऐसे तो सब लोग अपनी अलग अलग डेफिनेशन देना शुरू कर देंगे, है ना. सो हियर यू कैन सी द कलेक्शन ऑफ राइटर्स, गुड राइटर्स इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक बंदा अलग बोल रहा है, एक बंदा अलग बोल रहा है, एक बंदा अलग बोल रहा है. तो ये सेट कहां से होगा? ये तो वेल डेफिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है. सही है. सो बी इज नॉट अ, सो दिस सेकंड क्वेश्चन में हम बोलेंगे इट इज not a set because definition is changing. यहाँ लिख लेना because it is not well defined. इतना लिख दो तभी चलेगा, और अगर आप इससे ज्यादा लिखना है तो आप लिख सकते हो ऐसा कि here the definition is changing from person to person. For one person most talented writers will be different, for the second person most talented writers will be different. That's why we can't predict it is a set. हर बार याद रखना set यानी person to person change नहीं होने वाला है और उसमें कोई ना कोई relation चाहिए. Now moving toward the third one. Third one is a team of cricket batsmen of. Now here we can see the third is a team of 11 best cricket batsmen of the world. Again here person to person definition will be different. According to me 11 best batsmen will be different. According to person like B, again 11 best cricket batsmen will be different. So here definition is changing from person to person. That's why we can directly write it is not a set. Again this same because it is well defined set, blah blah blah. लिख लेना फिर से. Now the fourth one. Start with the fourth one. What is fourth one? Question number 4. Collection of all boys in your class. Whether it is a set or not. Yes, it is a set. Because if you start writing, let A is a set of all the boys. You will start writing all the names. Name A, name B, name C, name D and all. Right? In this way you can write all the names of your class, all the boys from your class. अगर अब मैंने ये क्वेश्चन किसी दूसरे को पूछा जाकर कि लिख भरे ये क्लास 11 के बॉयज के नाम, तो वो लिख पाएगा, है ना. अगर वो आपको इसमें ये नहीं कंसिडर किया है कि वो आपको पहचानता है नहीं है, ऐसा नहीं है. उसके नॉलेज से कंपैरिजन नहीं है, उसके चॉइस से कंपैरिजन. उसको सब कुछ पता है, ठीक है, उसके चॉइस से, उसके नॉलेज से कंपैरिजन नहीं है. तो बोलोगे मैंने उठा के लाया किसी को भी बाहर से, बोला चल लिख रहे 11th क्लास के बॉयज के नाम, बोले मेरे को नहीं पता है, ऐसा नहीं है. राइट. So this will be a set because it is a well defined set. अब ये लिखते जाना सब कुछ, फटाफट खत्म करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को कहाँ टाइम लगाते हैं. Now fifth, collection of all natural numbers less than 100.
इट विल बी अ सेट, राइट। ऑल नेचुरल नंबर्स लिखना शुरू कर दूंगा मैं, अब नाम दे देते बी, 1 2 3 अप टू 99 you can write, right? This will be a well defined set because it will not change person to person. And also here we can see these all these numbers 1 2 3 4 up to 99 are possessing a relation, that is they are natural numbers. Get it? Now 6, a collection of novels written by the writer Munshi Premchand. Batao, is it a set or not? Collection of novels written by राइटर मुंशी प्रेमचंद, राइट। अगर मैं लिखना शुरू कर दूंगा, चलो ये नॉवेल लिखी, ये लिखी, ये लिखी, लिखी, एक काउंटेबल नंबर ही लिखी होगी, कितनी भी लिखी हो, अनकाउंटेबल भी होंगी, तो नाम तो लिख पाऊंगा ना, और सब बुक्स पे मुंशी प्रेमचंद का नाम लिखा होगा, तो इट इज अ सेट। तो 6th वाला भी सेट है। 7th बोलो, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट है, ये भी सेट है। 6th तो आप नाम लिख लेंगे, वो तो इट इज अ सेट। फिर से वही अपना जो चल रहा था ऊपर का, बिकॉज इट इज। 7th पे आ गए, क्या पूछा है? ऑल इवन इंटीजर्स, 0 is even integer, 2 is even integer, 4 is even integer, 6 is even integer and so on। और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाए तो -2, -4 एंड सो ऑन, राइट। इसको नाम दे देंगे C equals to, है ना, क्लियर। इट इज अ सेट, फिर से लिखना, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ objects। Now 8, the collection of questions in this chapter। अगर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस उठा लूं तो वो तो एक मैं लिख पाऊंगा ना, चेंज थोड़ी होने वाले पर्सन टू पर्सन। मैंने बुक दी, ले बेटा लिख इसका, तो एक बच्चा सेम लिखेगा, दूसरा भी बच्चा सेम लिखेगा, इट इज नॉट चेंजिंग पर्सन टू पर्सन। और इन्होंने एक रिलेशन भी इनकी इसमें है, क्या है? दे आर possessing a relation of being questions of chapter 1 set, है ना। तो 8th भी सेट है। 9th पे आ जाते, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी के लिए सांप होगा, किसी के लिए शेर होगा, किसी के लिए, अब गर्ल्स के लिए तो वो हमारी लिजार्ड होती है, छिपकली होती है। उनके सामने शेर आया तो नहीं इतने जोर से चिल्लाएंगे जितने कॉकरोच डर जाते, उनके लिए तो डेंजरस कॉकरोच है ना। तो ये अगेन दिस इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मोस्ट डेंजरस मतलब, अगर आपको देखो एक शॉर्टकट बताते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है ऐसे, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट, ऐसा कुछ कंपैरिजन वर्ड आ रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी अ सेट। मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, जैसे मोस्ट टैलेंटेड है ना, मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है ना, कंपैरिजन है, एक बंदे से दूसरे का कंपैरिजन आ रहा है, बंदा हो या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो दैट विल नॉट बी, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल नॉट बी अ सेट। क्लियर है? मैंने बोला write the names of all the beautiful actress in India। अब सबके हिसाब से अलग अलग है भाई, किसको कौन सा ब्यूटीफुल लगता है, किसको कौन ब्यूटीफुल लगता है, तो that will not be a set। क्लियर? Now moving towards some of the properties or some of the terms which we are going to repeatedly use in our sets is always write name of set with capital letter of English alphabet। हमेशा क्या करना है, चलो नीचे ले लेते हैं। Following points to be noted। First है objects, elements and members of the sets are synonymous terms। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैंने मान लिया लिखा है set A is a collection of all vowels in English alphabetical letters, ये लिख दिया मैंने। तो हमेशा याद रखना है कैपिटल लेटर से आपको बताना है, देखो मैंने कैपिटल लेटर से बताया, और जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से बताना है, स्मॉल लेटर्स। ठीक है? नंबर्स रहेंगे तो एज ऑब्वियस सिर्फ नंबर लिखेंगे, उसको तो कुछ थोड़ी स्मॉल करोगे, ऐसा करोगे कि ये छोटा स्मॉल 1 है और ये बड़ा स्मॉल 1 है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। इसमें आपका रोमन लिपि वगैरह कुछ लेना देना है, कैसे भी लिखो, नंबर्स तो कैसे भी लिख सकते हो, बट ऑब्जेक्ट्स अगर लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर में लिखना है। सेकेंडली, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर के, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। मीन्स हम बोल सकते हैं A is a element of set A, E is a element of set A, I is a element of set A, O is element of set A, U is element of set A, ऐसा चलने दो। ठीक है? इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, जो किसने बोला है, इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? सारे सिनोनिम्स। नेक्स्ट,
सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ये लिख कर दिया है उसने, मैंने भी देखो हमेशा देखो, अगर मैंने पहले का अगर आप देखोगे तो मैंने हमेशा कैपिटल लेटर लिखा है, तो आपको भी कैपिटल लेटर ही लिखना है, ठीक है, याद रखो। नाउ द थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ये मैंने अभी बताया स्मॉल लेटर्स से ही लिखोगे, ठीक है। ये हुआ आपका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। अब हाउ टू राइट सेट्स, मतलब मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। फर्स्ट मेथड आता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म, ये वाला आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने लिखा है। जैसे देखो, अगर थ्योरी में कुछ लिख दिया जाए, आपको थ्योरी में बोल दिया जाए, जैसे अभी तक हम बोल रहे थे ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ एक्सरसाइज 1 का, उसमें सब कुछ थ्योरी में लिखा था, वर्डिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वर्डिंग में लिखा हुआ है, ए इज अ सेट ऑफ, देखो यहाँ पर पढ़ो आप, ए इज अ सेट ऑफ, देखो यहाँ ए इज अ सेट ऑफ, देखो इसको पढ़ते कैसे पहले वो भी देख लेते हैं। चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा दूर करता हूँ और हम इसको एक से पढ़ कर देखते हैं, मतलब पढ़ोगे कैसे इसको, पहले हाउ टू रीड अ सेट, इफ इट इज इन written in roster form, tabular form, so it should be a list form, rule form, this should be rule form, ये इधर का इधर कर दिया, दिस इज लिस्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें रूल लिखा रहेगा बस। अभी तो हम क्या कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे, जैसे ऊपर जो भी लिखा है हमने ऊपर का, ये लिस्ट में लिखा है ना, कॉमा कर करके कर करके रोस्टर बनाया है, चलिए ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसा, सही है, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत लिखा, पहले ही बराबर था क्या बोल रहा हूँ, पहले ही बराबर था, रोस्टर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है या लिस्ट फॉर्म। तो लिस्ट मतलब ये जो आपका, ये आपने हमने अभी कॉमा कर करके लिखा है, ये लिस्ट में लिखा है, रोस्टर में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ये सारे सेट्स जो मैंने लिख कर दिए आपको अभी तक, कॉमा कर करके लिखे जो है, वो लिस्ट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। उसी को रोस्टर फॉर्म बोलो, उसी को टेबुलर फॉर्म बोलो, आपको जो बोलना है बोलो। और अगर इसमें लिखा हो रूल के इसमें, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ये सही था आपका, बोलते बोलते मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। अब देखो, अभी एक एक करके, ये तो समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मतलब कॉमा करके लिखते हो, ये सेट बिल्डर वगैरह क्या है ये देखते हैं। पहले ये जो हमने एग्जांपल लिया है सेट का, उसको समझते कैसे पढ़ते, देखो इसको ऐसा कुछ पढ़ोगे, इसका A is a set of A is a set of all X, इतने पार्ट को, इतने पार्ट को आप ऐसा पढ़ोगे, A is a set of all X, यहाँ Y अगर होगा तो आप लिखोगे all Y, बस फर्क पड़ जाएगा इतने, ये चेंज हो जाएगा सब, यहाँ नाम बदल गया, एक ही जगह तो B लगा देंगे बस। अब ये जो है, ये जो कोलन लिखा है, इसको पढ़ोगे सच दैट, सच दैट पढ़ोगे, फिर बाकी का जैसा है वैसे ही पढ़ते जाओ। और इसके बाद अगर कोई कॉमा आता है तो उसको पढ़ोगे वेयर, अगर कॉमा आता है तो, यहाँ नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे, चलो आगे मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए याद रख लो। तो इसको भी कैसे पढ़ेंगे, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, आगे नहीं, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जिसमें आपने क्या किया है, एक रूल के फॉर्म में लिखा है या वर्डिंग में लिखा है, उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, ठीक है। नीचे जो मैंने लिखा है, ये एग्जांपल के लिए ले लिए थे। तो अब देखो, ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसको लिस्ट फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 42 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर्स लिखना शुरू कर दो। 1 डिवाइड करता है 42 को, 2 इज ऑल्सो डिवाइडिंग 42, अब 3 करता है 42 को डिवाइड करता है, 4 करेगा क्या, नहीं, 5 नहीं, 6 करेगा क्या, करेगा, सॉरी 6 करेगा क्या, करेगा, 7 करेगा, करेगा, 8 करेगा, नहीं, 9 भी करेगा ना, करेगा क्या, नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, ऐसा लिखते जाओ, आप बड़े हो गए हो लिख लेना। तो ये अगर मैं सेट नंबर लिखना शुरू कर दूंगा जो भी है आगे, तो ये बन गया आपका कॉमा कर करके लिख दिया है, इसलिए ये बन गया हमारा लिस्ट फॉर्म, गेटिंग इट हियर, this A is called as list form, roster form or tabular form. This form will be called as
सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म. गेटिंग इट? सेम हियर दिस बी. चलो इसको नीचे ले लेते थोड़ा सा. अगेन दिस बी. थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं. बार बार वही वही बोल रहे हो वैसे तो देखो. फिर से अभी जो हमने लिखा था बी, ये तो आपका कौन सा फॉर्म है? रूल फॉर्म है, क्योंकि रूल में लिखा है. इसको पढ़ेंगे कैसे? बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. खत्म. अगर मुझको लिस्ट में लिखना है तो ये आया ए ई आई ओ यू. सिंपल. ये लिस्ट फॉर्म हो गया, ये रूल फॉर्म हो गया, ये लिस्ट या रोस्टर. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल फिर आ जाओ, सी पे आ जाओ. Z, C is a set of all Z. ठीक है, C is a set of all Z. यहाँ पर एक कैपिटल C है, दिखते वक्त ऐसा लग रहा है कैपिटल C. C is a set of all Z such that Z is an odd natural number. तो इसको लिस्ट फॉर्म में लिखते वक्त कैसे लिख देंगे? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. चलने दो. क्लियर है? ये लिस्ट फॉर्म हो गया. ऊपर वाला जो है वो रूल फॉर्म है. कोई मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपको बताऊं मैं सेट का, तो लेट्स D is a set of all x such that x is equals to 2n where, देखो यहाँ पड़ेगा ना where n, अगर नंबर दे दो नंबर n is equals to 1, 2 and 3. बताओ, ये लिस्ट फॉर्म हो गया क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है ना, रूल टाइप में लिखा है. x क्या लेने वाला है? 2n लेने वाला है. और n क्या लेगा? पहले 1 लेगा. देखो x इक्वल टू 2n फॉर्मूला है. अगर मैंने n की जगह 1 रखा तो x पहले क्या वैल्यू लेगा? 2 लेगा. फिर मैंने 2 रखा तो x क्या वैल्यू लेगा? 4 लेगा. फिर मैंने 3 रखा तो x क्या वैल्यू लेगा? 6 लेगा. तो D सेट को अगर लिस्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसा आ जाएगा? 2, 4 एंड 6. दिस इज योर रूल फॉर्म, दिस इज योर लिस्ट फॉर्म. गेटिंग इट? बस लिखने का तरीका अलग अलग. ठीक है. और कुछ एग्जांपल लेते हैं. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे अभी आगे आगे कि आपको दिया रहेगा लिस्ट फॉर्म, आपको रूल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या रूल फॉर्म लिखा होगा आपको लिस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा. चलो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बताओ मुझको आप कैसे इसको. डी सेट है कोई, डी सेट है, ऐसा है वो 2, 4, 8, 16, 32. अब इसको बोला है दिस इज इन लिस्ट फॉर्म, दे आर आस्किंग अस टू राइट इट इन रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. हाउ टू राइट? देखो कैसे लिखोगे, इसमें समझने जैसा है. मुझको ये दिख रहा है, देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ पावर 1, 4 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, 8 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 3, 16 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 4, 2 का पावर क्या आएगा? 5. ऐसा है इसका मतलब. ये इक्वल है ना, एक ही बात है. अब मुझको दिख रहा है 2 कांस्टेंट है, ऊपर का चेंज हो रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 इज अ सेट ऑफ ऑल x, राइट, सच दैट x इक्वल्स टू लेना पड़ेगा क्योंकि x ये वैल्यू लेना चाहिए. 2 का पावर n जो चेंज हो रहा है वो लगा दो ऊपर. वेयर n विल टेक, कौन कौन से वैल्यू लेगा? 1, 2, 3, 4, 5. सही है, काम हो गया हमारा. मैंने इसको रूल के फॉर्म में लिख दिया. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. अभी समझा तो ये क्या लिखा मैंने? ई जैसा दिख रहा है ना, ऐसा भी लिख सकता हूँ. देखो इसको पढ़ते हैं, ये जो रहेगा ना, ये अभी का साइड में रखो, मैं समझाता हूँ इसको. इसको पढ़ोगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू. ई ऐसा निकालना है, ई. समझ रहे हो? ई निकालना. इसका मतलब क्या होता है? देखो ई, अगर मुझको सेट पे आते हैं, फिर से सेट पे आते हैं. अगर देखो ये सेट दिख रहा है मुझको, बी इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो ये जो एलिमेंट है ना ए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बिलोंग्स टू सेट बी, क्योंकि ए जो है वो बिलोंग करता है सेट बी को. बिलोंग करता है मतलब उसका पार्ट है. गेटिंग इट? सो बिलोंग्स टू ना, ए बिलोंग्स टू, पढ़ो यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू बी. ठीक है. अगर मैं ऐसा लिखूं एफ बिलोंग्स टू बी, लिख सकता हूँ क्या? एफ इसका पार्ट है क्या सेट का? बी का नहीं.
तो बस इसको कट करना पड़ेगा मुझको। ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ये लिख दो, डू नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, आपको जो लिखना है लिखो, ठीक है ना, समझ लो। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू, अगर पार्ट है तो बिलोंग्स टू लिखेंगे, नहीं है तो ऐसा क्रॉस मारेंगे, जैसे इक्वल टू पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसा मारते थे वैसा करेंगे, सिंपल, क्लियर है। और एक चीज याद रखनी, अगर मुझको नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है, मतलब ऐसा लिखना शुरू कर दो, नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसा लिखते जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली कैपिटल एन लिख सकता हूँ। कैपिटल एन मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा मैथ्स में, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैंने कैपिटल डब्ल्यू लिख दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। अब एक होमवर्क है आपको कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है, और होल नंबर को होल नंबर क्यों कहा जाता है, ये जीरो आ गया इसलिए सिर्फ। फिर कुछ बच्चे ये आंसर देंगे सर ना जीरो बाद में इन्वेंट हुआ तो फिर एक नया सेट बना, ऐसा क्यों बनाया, पहले तो दिमाग खराब हो रहा है याद रखने में, इतनी सारी चीजें है, आप एक ही सेट रखो ना, इसको खत्म करो ना, ये सेट लो मैथ्स का, फिर आप बोलोगे यार नहीं, फिर इंटीजर था, इंटीजर में ये आ जाता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इधर -1 -2 -3 ये सब आ रहा है आपका। फिर अगर ये बन गया था तो ये क्यों लिखा फिर होल नंबर, इंटीजर ही सेट यूज करना चाहिए, सारे नंबर्स आ जाते इसमें। फिर वो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं, फिर अगर इंटीजर क्यों, ये देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, आप याद करते जाओ, आई रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर्स को, ठीक है, जेड भी लिख सकते हो, कैपिटल जेड, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर रियल रैशनल नंबर्स भी तो थे, फिर क्यू से रिप्रेजेंट करते थे ना, सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे उसमें, इंटीजर्स भी आ जाते, सारे इंटीजर्स भी आ जाते उसमें, और पी वाई क्यू वाले फॉर्म भी आ जाते, सब आ जाते उसके अंदर। फिर इतना सारा लिखा ही, इंटीजर भी नहीं लिखना चाहिए था फिर तो, हमने एक ही सेट यूज करो ना, खत्म करो। फिर दूसरा और बच्चा बोलेगा जिसने और मैथ्स पढ़ा होगा, हाँ ऐसा कैसे, सिर्फ क्या रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर भी तो है, वो बोलेगा इरेशनल नंबर में तो सिर्फ इरेशनल आएंगे, ये हट जाएंगे। फिर एक बंदा और बोलेगा जिसने और मैथ्स पढ़ा है, रियल नंबर ही ले लेते ना, जिसमें सारे आ गए, सब सब आ गए उसमें, उसमें इंटीजर भी आ गए, रैशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया, सब आ गया उसमें, रियल नंबर का सेट। अब ये सब लिख लो इसके अंदर, तो इतना सारा क्यों पढ़ रहे हो फिर आप, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये इसका क्वेश्चन चाहिए, क्यों पढ़ रहे हो, पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए पढ़ क्यों रहे, सबसे मैंने इतना इतना झंझट क्यों चला चला रखा है, गेटिंग इट। So this is the question for this. Why natural number? For today's question is why natural number is called natural number and why we are using whole number. या ऐसा बोलेंगे why we are using natural number if we have whole number. ठीक है, इंटीजर में निगेटिव वगैरह आता है, ठीक है, हम एक बार का मान लेंगे, आपको कहीं पे मैथ्स में जरूरत पड़ रही होगी इसलिए आपने वो यूज कर लिया, पर होल नंबर में तो सिर्फ जीरो का ही फर्क था, तो ये एन वाला एक सेट कम करते, इतना सारा कौन याद रखेगा, है ना। तो बस याद रख लो आज के लिए, अभी ये तो क्वेश्चन है, दूसरा आपको भी याद रखना है कि n विल रिप्रेजेंट ऑल नेचुरल नंबर्स, w विल रिप्रेजेंट ऑल होल नंबर्स कैपिटल, I और z विल रिप्रेजेंट ऑल इंटीजर्स, q विल रिप्रेजेंट ऑल irrational number, q dash will represent all irrational number, r will represent all real number, and also if I write I plus, that means all positive integer, right, ये याद रखना है। और अगर i माइनस रखो तो ऑल नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये याद रखना है, i प्लस मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर, i माइनस मतलब ऑल नेगेटिव इंटीजर, they are representing this alphabet, capital alphabetical letters are representing numbers। अब बोलोगे कि फिर बाकी के क्यों नहीं लिए, ये तो मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया ना, बार बार लिखने की जगह सब लोग बैठे होंगे, उन्होंने डिसाइड किया है कि यार बार बार झंझट खत्म करते, एक ही लगाते ना अपन, सब एक ही रखेंगे, ठीक है, गेटिंग इट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ कमिंग टू आवर दिस मेथड, दिस पार्ट which we have used to write this set, ये लिख लिया था, ये सिंपल था, ये थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है,
तो सीधी बात है D is a set of all x such that x is taking 2 to the power n where n belongs to natural number। इसका मतलब क्या हो गया, n जो लेगा वो नेचुरल नंबर ही लेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, n नेचुरल नंबर ही लेगा और कोई नंबर लेगा ही नहीं। फिर हमने एक और दे दिया कंडीशन, नेचुरल नंबर तो लेगा बट 5 या 5 से छोटा लेगा, लेस देन इक्वल टू। इसको कैसे पढ़ोगे, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, एक तो लेस हो जाए या तो इक्वल हो जाए, दोनों में से एक हो जाए। n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेने वाला है तो 1 2 3 से शुरू होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी, 5 पे आ जाएगी ना, सिर्फ 5 पे आ जाएगी, मतलब हम इतना ही लिख सकते हैं, ले सकते हैं। बस एक एक बार रखोगे n की जगह पर तो x की वैल्यूज मिलती जाएंगी, ये सेट बन जाएगा वापस से, है ना। कि अब रख रख के दिखाओ, रखो n की जगह पहले 1 रखोगे तो 2 का पावर 1 आएगा, फिर 2 रखोगे तो 2 का पावर 2 आएगा। ऐसे n की वैल्यूज चेंज होते 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 x की ये वैल्यूज ही मिल जाएगी आपको, इसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो D सेट लिस्ट फॉर्म वाला तैयार हो जाएगा, सिंपल। ठीक, चलो फिर स्क्रीन पॉज करना और ये वाला सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब ये रूल फॉर्म में लिख कर दिखाओ फिर। ठीक है, 1/3 to the power -1, नहीं ऐसा लिखते, अभी के लिए इतने लिखते। स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करके देखो, फिर आंसर चेक करो। नाउ सॉल्व कर लिया, चेक हियर आई कैन राइट दिस एज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर 1/3 to the power 3 1/3 to the power 4, right? So to write this, let's start with let A is a set of all x such that x is equals to 1/, here I can see 3 is constant, right? 3 is constant, that's why I can use this। और जो वेरिएबल टर्म है उसके लिए n लिख दो, n लगा दो, ये n लगा दिया। और ये नेचुरल नंबर है ना, 2 3 4 नेचुरल नंबर है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट ले लूंगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है। और n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हो जाएगा क्या सही, नहीं, क्योंकि अभी इस केस में अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और बोल दिया कि यही आंसर है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, बिकॉज n विल टेक ऑल नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू 4 लेगा। आपको ये 1 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 3 4 चाहिए। तो कैसे लिखोगे, n शुड बी ग्रेटर देन 1, ऐसा लिख दो, काम हो जाएगा। n ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, काम हो गया हमारा, सही है। समझ लो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये हटा देता हूं मैं अभी के लिए। You can write this also, only this part, right? Only this part. n is greater than 1 less than 5, एक ही बात है ना। 1 से बड़ा मतलब 2 3 4, 5 से छोटा तो 4 तक आकर रुक जाएगा, n इतनी ही वैल्यू लेगा। तो यही तो चाहिए हमको, 2 3 एंड 4, गेटिंग इट। ये लिखना ये लिखो, ये लिखना ये लिखो, बाकी का तो टर्म सेम ही रहेगा, सिंपल है। सो दिस इज ओनली अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अगर मैथमेटिकली भी लिख रहे हो आप तो वो रूल लिख रहे हो, इसलिए इट विल बी दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ए विल बी termed as set builder form or rule form, and if you are writing in a list form it is called list form, tabular form or roster form, getting it? Now let's start with the second question of our exercise 1। क्या कहा है, देखो, let A is A, एक सेट दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6, एक सेट दे दिया, insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank। चलो लिखो, बताओ फटाफट क्या आएगा फिर। 5 है क्या इसका पार्ट ए का, है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इट 5 बिलोंग्स टू ए। 8 है क्या पार्ट ए का, नहीं, डोंट बिलोंग, 8 डजंट बिलोंग्स टू ए, राइट। 0 है क्या पार्ट, नहीं, डोंट बिलोंग्स टू ए। 4 है क्या इसका पार्ट, है, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 सेट का पार्ट है। 2 है क्या, है। 10 है क्या, नहीं है। देखो कितना सिंपल है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अब थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करके देखो और फिर आंसर्स टैली करो। ना चलो फाइंड द आंसर्स, चेक करो, है ना, सॉल्यूशंस। चलो फर्स्ट फटाफट लिखना शुरू करते हैं।
समझो जल्दी जल्दी। क्या बोला, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर रहेगा मतलब निगेटिव नंबर भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है ना, और -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा होगा फिर ए सेट, -3 से बड़ा, -2, -1, 0। We will consider this example only, 3, 4, 5 and 6, राइट। ये आ गया सॉल्यूशन। अब किसी बुक में इक्वल टू हो सकता है, अगर इसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, इक्वल टू कर दोगे तो अगर मैंने -3 के पास में -3 इज लेस देन इक्वल टू, तो -3 इन्वॉल्व हो जाएगा। 7 के पास रख दिया x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो 7 आ जाएगा। अभी इस केस में हमको लेस देन दिख रहा है, हमने इसलिए ये ले लिया, ठीक है। अब ऑप्शन बी देख लो क्या बोला है, क्वेश्चन बी, एक्स इज बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ते आना चाहिए, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लिखो, नेचुरल नंबर शुरू हो गया 1 2 3 4 5 तक, 6 से छोटा चाहिए 6 से, उतना हो गया है ना। अब थर्ड का सॉल्यूशन क्या आएगा, C, C is a set of all x such that x is two-digit number, natural number है ना, two-digit natural number such that sum of its digit is 8। बताओ sum of digits कौन सी होगी, हम सारा साइड में लिखते हैं, 8 सम आना चाहिए। तो अगर देखो टू डिजिट नंबर मतलब 1 10 से शुरू होगा है ना, तो निकालो किस किस का सम आ सकता है, 8 1 7 का, 7 1 का, 2 6 का, 6 2 का, 3 5 का, 5 3 का, सही ना, 4 4 का। उसके बाद जो 5 लेने वाले हो 5 3 तो आ गया, बस इतने नंबर्स आएंगे है ना। तो अब इसको सिर्फ लिखना है 17 20, और ऑर्डर में लिख लो अब इसको, पहले से ऑर्डर में। चलो लिखो क्या आएगा, 17 26 35 44 71 है ना, 62 और 53। तो देखो ये हटा देते हैं, 53 62 एंड 71 ऑर्डर में लिख लिया, बस थोड़ा सा ढंग का लिखे इसलिए, और कुछ नहीं है। आ गए ना, 1 2 3 6 7 आए ना, सही है, क्लियर है सबको, आ गया ये सेट लिख लिया। अब ये हटा देते हैं, ये तो रफ में आप कभी भी कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। अब फोर्थ पे डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब आपको सारे प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2 इज अ प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर सकता है 60 को, कर रहा है ना। इसके बाद 3 प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड कर सकता है क्या, कर रहा है। इसके बाद 5 इज अ प्राइम नंबर, 60 को डिवाइड कर सकता है। 7 इज प्राइम नंबर, नहीं कर सकता है। इसके बाद 11 नहीं कर सकता है, 13 नहीं कर सकता है, 17 नहीं कर सकता है, 19 नहीं कर सकता है, फिर 23 नहीं कर सकता है, उसके बाद आएगा 29 नहीं कर सकता है। बस आप तो कर ही नहीं सकता है ना, तो इतना ही रहेगा। तो 2 3 5 है जो ऐसे प्राइम नंबर्स, नेचुरल प्राइम नंबर्स बोल सकते हो, ऐसे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। आ गया लिस्ट फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा था। आ जाते फिफ्थ पे, ई इज अ सेट ऑफ, देखो ई इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये यहाँ पर याद रखना है, कभी भी याद रखो जब भी सेट लिखते हो तो सेम अगर नंबर्स आ रहे हैं, सेम अल्फाबेट्स आ रहे हैं, मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको एक ही बार लिखना है, रिपीटेड लिखना नहीं है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड है उसमें से अगर हम अल्फाबेट्स उठाना शुरू करते, ठीक है, तो मैंने टी उठाया, फिर आई लिखा, आर लिखा, आई लिखा, जी लिखा, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, अब फिर से ओ आया, देखो एन के बाद ओ आया है, तो ओ पहले आ चुका है, तो अब ओ लिखने की जरूरत नहीं। फिर एम लिखोगे, फिर ई आ चुका है क्या, नहीं। फिर आया आपका टी, टी आ चुका है, नहीं लिखोगे। आर आ चुका है, नहीं लिखोगे। वाई नहीं आया है, लिख दोगे वाई। बस ये रहेंगे, सही है। इतने ही अल्फाबेट्स लिखोगे आप ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के। तो एक चीज याद रखना है, इफ द एलिमेंट्स आर रिपीटिंग इन सेट ओनली राइट इट वंस, एक ही बार लिखो, गेटिंग इट। ये वाला थ्योरी हमने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था, एग्जांपल के साथ, अभी एक्सप्लेन कर लिया है। फिर से अब 6 क्वेश्चन, एफ इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, क्या आएगा, BETR सिर्फ,
है ना, B E T एंड R। ठीक है, चाहो तो इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है इसलिए मैंने भी लिखा है। नहीं तो ऐसा बोलोगे सर आपने तो पहले बताया था कि एलिमेंट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अगर वो किसी का, ये देखो इसने पहले से क्लियरली डिफाइन कर दिया था कैपिटल में लिखना है, हम तो सिर्फ उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लिस्ट फॉर्म में। हमने पहले से डिसाइड नहीं करा सेट है करके, इसने खुद ही बोला है सेट है। अगर वो आपको फोर्स कर रहा है ऐसा ही लिखना है तो आप लिखते हो, बट जब खुद डिसाइड करते हो हमारे पास ऑप्शन है लिखते हो, तो हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है,